الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق اللہ العظیم. حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کیا کرو. اللہ بڑے کی تعریف کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، سید الاتقیاء، سید الصلحاء، سید الاولین والآخرین، سید المؤمنین والمتقین، امامنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے. رب ذوالجلال پاک پیغمبر علیہ السلام کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. احباب گرامی، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی. کسی کو عمرے کے لیے بلایا تو کسی کو حج کی سعادت عطا ہو گئی. دعا کرتے ہیں مالک جس جس کو آپ نے یہ شرف بخشا ہے ان سے یہ قبول فرما لیجیے، اور جو ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، تمنا اور آرزو رکھتے ہیں اور نہیں جا پائے یا پہلے جا بھی چکے ہیں، تو مالک بار بار اپنے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرما دیجیے. کوئی شک نہیں کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج ہے، اور اس کی فضیلت اور اس کا ثواب وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جس نے حج کیا اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اس میں کوئی غلط کام نہیں کیا، طریقہ محمدیہ کو اپناتے ہوئے حج کیا ہے، رجع كيوم ولدته امه، تو ایسے واپس پلٹتا ہے جیسے آج ہی وہ دنیا میں آیا ہے، آج ہی وہ پیدا ہوا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. تبھی تو لوگ حج سے آنے والے کو ملتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، اس کے سینے سے اپنا سینہ لگاتے ہیں. یہ سینہ وہ ہے جو اللہ کے گھر کو لگ کے آیا ہے، اللہ نے اس کے گناہوں کو پاک کر دیا، صاف کر دیا ہے، گناہوں سے اس کو پاک کر دیا ہے. یہ گناہوں سے پاک صاف ہو گیا ہے، طاہر انسان ہے، پاکیزہ شخص ہے، پاکیزہ دل والا ہے، پاکیزہ کردار اس کو اللہ نے عطا فرما دیا ہے. سب مبارکباد کہتے ہیں. تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے، آپ کے فرامین مبارکہ سے آج ہم کچھ ایسے اعمال کو ڈسکس کریں گے کہ جن کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ہی بیان فرمائی ہے
فرمایا جیسے وہ احرام پہن کر بیت اللہ کا حج کر رہا ہے، وہاں تو نہیں جا سکے، اللہ لے جائے گا، لیکن یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، تاکہ وہ فضیلت پا سکیں، اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو سکیں کہ جن کو اللہ نے یہ شرف بخشنا ہے کہ میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ کیوں جی، چاہت ہے یا نہیں؟ ایتھے بیٹھے جو جی اللہ عجیب بنا دے کہ چھوٹی گل ہے جی، لیکن ایک گل ہے، ایک چیز رہ جائے گی، کسی حاجی صاحب آکھنا نہیں، یہ چیز رہ جائے گی، جو ہو کے آئے گا اس کو ساتھ کہا بھی جائے گا۔ اللہ ہمیں یہ کہلوانے سے محفوظ فرمائے، کبھی یہ خواہش نہیں رہی اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ کہا جائے۔ الحمدللہ بھائی، اگر کوئی اپنی محبت سے کہہ دیتا ہے، نسبت کر دیتا ہے، تو وہ اس کا پیار ہے، لیکن یہ جو بار بار بعض جگہوں پہ لکھا دیکھا جاتا ہے نا، خود لکھوانا، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ کسی کو مینشن نہیں کر رہے، خود لکھوانا ہے۔ اگر کسی دکان کے باہر لکھوانا ہے تو وہ بھی خود لکھوا رہے ہیں کہ لکھ دیجئے حاجی، چلے میں اپنا نام لے دیتا ہوں، حاجی بلال صاحب۔ اگر کسی پیڈ کے اوپر، اگر کسی بل کے اوپر چھاپنا ہو یا باہر نیم پلیٹ گھر کے باہر لگوانا ہو تو لکھ دیجئے فلاں۔ تو یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ شریعت تو پسند کرتی ہے کہ جو کیا ہے اس کو چھپانے کی کوشش کیجیے۔ اسلاف کا یہ طور طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اعمال کرتے اور ان کو مخفی رکھنے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ میں نے وہ اسلاف کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں کچھ مثالیں پیش کی تھی، جن میں میں نے ایک مثال یہ بھی دی تھی کہ ہمارے اسلاف میں ایسے نیک بزرگ بھی گزرے ہیں کہ جو اپنے تکیے پہ لیٹے ہوئے گھر والوں کے ساتھ، لیکن خوف خدا کی یہ کیفیت طاری ہو جاتی کہ وہ رو رہے ہوتے تھے، لیکن اسی تکیے پر لیتے ہوئے لائف پارٹنر اور اپنی زوجہ کو بھی معلوم نہیں ہونے دیتے تھے کہ میری آنکھ سے آنسو بہ رہے۔ اور ایسی مثال بھی میں نے آپ کو سنائی تھی اسلاف کی، ہمارے بڑوں کی، جن کو اللہ نے مقام بخشا کہ گھر سے کھانا ملا ہے، کھانا کھا لیا ہے، یوں سمجھیں کہ وہ ان کے صبح کا کھانا ہو گیا، گھر والوں کے نزدیک یہ جیسے یہ ناشتہ کیا ہے یا صبح کا کھانا ہے۔ اس طرح تو نہیں ہوتا تھا 3 ٹائم کا کھانا، 4 ٹائم کا کھانا، وہ تو 2 ٹائم کے کھانے کو بڑی غنیمت سمجھ، اور وہ اپنے کام پہ روانہ ہو گیا اور شام کا کھانا دے دیا، دوپہر کا کھانا دے دیا، اور وہ اس کو افطاری کے لیے رکھ لیا کرتے، یعنی روزہ رکھا ہے تے گھر والے نوں نہیں پتا کہ ساڈے گھر والے نے روزہ رکھے۔ ایسی کوئی ایک مثال تو ہونی چاہیے میرے بھائی۔ تو حاجی صاحب کو بھی کوشش فرمانی چاہیے کہ حج کیا ہے اس کو مخفی رکھے۔ ہاں، لوگ اپنی محبت سے اگر نسبت کرتے ہیں بیت اللہ شریف کے حج کی طرف تو کرتے رہیں، اللہ ان کا پیار قبول فرمائے، لیکن کہلوانے کی خواہش یا یہ اقدام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہاں بیٹھے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنی لائف کے اندر ہم ایسے اعمال کر سکتے ہیں روٹین کی لائف میں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ حاجی والی سعادت عطا فرما دیں گے، سارے گناہوں کو ختم فرما دیں گے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا وہ فرمان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتا ہے، آپ کوشش فرمایا کریں، اگرچہ مسجد میں نماز کے لیے اور وضو کے لیے ہر طرح کی سہولت موجود ہوتی ہے، کوشش کیا کریں کہ وضو گھر سے بنا کے آئے۔ فضیلت کیا ہے؟ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مشى الى صلاة مكتوبة الى الجماعة فهي كحجة ومن مشى الى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة۔ جو شخص
फर्ज नमाज के लिए घर से निकलता है, अभी भी आप फर्ज नमाज के लिए तशरीफ लाए हैं, जुमे की नमाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फर्ज नमाज की नीयत करके घर से निकलता है, इस रिवायत में घर से वुजू करने की भी कैद नहीं है, दूसरी रिवायत में घर से वुजू करने की बात मौजूद है। फरमाया वो ऐसी है, फहिया का हज्जतिन, इसको ऐसा सवाब अल्लाह ताला अता फरमाते हैं कि जिस तरह एक हाजी को अता किया जाता है। खालिस नियत यह है कि मैं मस्जिद जा रहा हूं, अल्लाह की रजा के लिए फर्ज नमाज जमात से अदा करनी है, वापस आ जाना है, न फितने की बात करनी है, न फितने का हिस्सा बनना है, न फितने को सुनना है अल्लाह के फजल से। और आगे क्या फरमाया, जो नफल पढ़ने के लिए जाता है, नफली नमाज के लिए। मुझे चंद जुमे पहले इत्तेफाक हुआ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफी पहले सुबह इशराक के वक्त यहां मरकज नूरे तौहीद में पहुंचा, जब यूनुस भाई अल्लाह को प्यारे हुए, अल्लाह मगफरत फरमाए। तो मैंने आगे यहां देखा और मैंने कारी साहब से पूछा, बड़ी खुशी हुई कि कई नौजवान अल्लाह के फजलो करम से वो इशराक के वक्त में यहां चाश की और इशराक की नमाज और नवाफिल अदा कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे। बड़ा दिल राजी हुआ। कारी साहब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रूटीन है एक अरसे से, जब से पता चला है कि लोगों का रुझान इस तरफ भी है, तो एक बंदा भी कौन आए तो हम मस्जिद को ताला नहीं लगाते हैं, क्लोज नहीं करते हैं, लोग आते हैं और नवाफिल अदा करते हैं, दुआएं करते हैं, नफली नमाज के लिए भी वो मस्जिद का रुख करते हैं। बताना ये चाह रहा हूं, ये तो शेड्यूल है ही ना कि फर्ज के लिए मस्जिद में आना, तो नफल पढ़ने के लिए भी अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाते, सहाबा किराम भी तशरीफ लाते, और हमारी जिंदगी में भी कोई ना कोई वक्त ऐसा जरूर होना चाहिए कि जिसमें हम खालिस अल्लाह की रजा के लिए नफली नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में हाजिर हूं। कभी कभी कोशिश फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो नबी गिरामी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो नफल पढ़ने के लिए आता है, वमन नशा इला, अगरचे घर में पढ़ना भी बड़ा अफजल है, यहां बात क्या हो रही, मस्जिद में आने की। वमन नशा इला सलाती ततव्वुई, नफल पढ़ने के लिए चल पड़ा है मस्जिद की तरफ, फहिया कउम्रतिन ताम्मा, अल्लाह मुकम्मल उम्रे का सवाब इसके खाते में दर्ज कर देते हैं। दूसरी रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसी सहाबी की रिवायत सय्यदुना अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खरज मिन बैतिही मुततहिरन इला सलातिन मक्तूबह फअजरुहु कअजरिल हाजिल मुहरिम। फरमाया जो घर से वुजू करके फर्ज नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चल पड़ता है, सुनन नबी दाऊद की रिवायत, उसका अजर अल्लाह ताला ने मुकम्मल हाजी जो एहराम पहन के, एहराम का तज़किरा किया है, एहराम पहनकर जो अल्लाह के घर का हज कर रहा होता है, मुकम्मल इसको ये सवाब अता कर दिया जाता है। आगे बढ़िए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में आ गए, नमाज अदा कर ली, एक दर्जा अता हो गया, मजीद आप चाहते हैं तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान भी सुनिए। फरमाया, मन गदा इलल मस्जिद, जो मस्जिद में आता है, ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम औ युअल्लिमह, वो आता है कुछ सीखने के लिए, या अगर अल्लाह ने सिखाया हुआ है तो फिर दूसरों को सिखाने के लिए। नमाज के लिए तो आना ही है। तो इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि कोई कुरान पाक की आयत सीखने सिखाने के लिए, कोई हदीस का दर्स या देने के लिए या सुनने के लिए, या मसला किसी को बताने के लिए, रहनुमाई करने के लिए, या फिर हजरत कारी साहब से मसला दरियाफ्त करने के लिए, फरमाया वो आता है। सिर्फ दो मकसद है, दो में से एक मकसद है, इल्ला अन यतअल्लम खैरन, खैर की बात सीखना चाहता है, औ युअल्लिमहु, या सिखाना चाहता है। फरमाया कि अजरी हाजिन ताम्मन हज्जतुहु, इसको अल्लाह इतना सवाब अता करते हैं
जितना उस हाजी को अता करते हैं जिसका हज मुकम्मल, कंप्लीट और परफेक्ट होता है। मस्जिद में आना क्यों है? दोहरा लीजिए, क्यों आना है? कुरान और हदीस की बात, खैर की बात, या सीखने के लिए या सिखाने के लिए। यहां तर्जमा क्लास हो रही का रिसा? तर्जमा क्लास होती है या हदीस की क्लास? इशा के बाद कितना दुरानिया है? नमाज इशा के बाद यहां तसलसल से माशा अल्लाह चंद मिनट, 10 मिनट से भी कम कुरान और हदीस की बाकायदा क्लास होती है। अल्लाह पढ़ने पढ़ाने वालों और इसका एहतमाम करने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आप भी कोशिश फरमाया करें, बर वक्त नमाज इशा यहां अदा करें और इस हदीस के मिस्ताक बन जाए। ज़हन में यही रखना है कि भाई कुछ सीखेंगे और अगर हमें कुछ आता है तो हम सिखाएंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसमें फरमाया कि पूरे पूरे हाजी के बराबर हम इसको सवाब अता फरमा देंगे। अल्लाह हमें ये सआदत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और अमल भी बताया है कि जिसको अपनाने के साथ हम यहां अपने इलाके और घर में रहते हुए अपनी मामूल की लाइफ में हज और उम्रे की सआदत और उसका सवाब और शर्फ हासिल कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, फक़ाल, कहने लगा, इन्नी अश्तहिल जिहाद, अल्लाह के नबी जी मैं जिहाद की ख्वाहिश रखता हूं, वला अक़दिरु अलैहि, ताकत नहीं है, साजो सामान नहीं है, शामिल नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल बक़िया मिन वालिदैका अहदुन, माँ बाप में से कोई एक भी दुनिया में मौजूद है? हल बक़िया, बाकी रह गया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब मिला, क़ाला उम्मी, जी जी वालिदा हयात हैं। क़ाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी वालिदा से हुस्ने सलूक करना शुरू कर दो, उनकी खिदमत में मसरूफ हो जाओ। फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिक फ़अन्त हाज्जुन व मुअतमिरुन व मुजाहिदुन, फरमाया अगर माँ की खिदमत में लग जाओगे, हाजी भी हो, मुअतमिर भी हो यानी उम्रा करने वाले भी हो, और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले भी हो, तीनों के बराबर अल्लाह अजर अता फरमा देंगे। तीनों के बराबर अल्लाह अजर और सवाब अता फरमा देंगे। खालिस ये खिदमत क्यों करनी है? अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह करीम हमें ये भी शर्फ अता फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी नोट करें। हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन जहज़ गाज़ियन औ जहज़ हाज्जन, जिसने किसी मुजाहिद की तैयारी करवाई, किसी भी तरह से उसको ट्रेनिंग दी, उसके काम आया, उसको हथियार दिए, उसको असलहा फराहम किया, उसको इस रास्ते पे लगाया, उसको हौसला दिया, किसी भी तरह से उसको सपोर्ट किया, औ जहज़ हाज्जन, या किसी हाजी को तैयारी करवाई। अल्लाह ने तौफीक दी होती है, कई लोग किसी भी अंदाज में हज के लिए तैयारी करवा देते। आगे फरमाया ये बड़ा काम है तो आगे छोटा फरमाया, औ खलफ़हु फी अहली, फरमाया या फिर तैयारी तो नहीं करवाई लेकिन वो निकला हुआ है जिहाद के लिए या वो निकला हुआ है हज के लिए, तो ये घर वालों के काम आता है, ये घर वालों के काम आता है। उनको कुछ छोटी मोटी हाजत हो, छोटे मोटे काम हो, तो उनको कहता है परेशान ना हो, जब तक हमारा भाई हज पे है या जिहाद पे है तो आपके ये छोटे मोटे काम हम करेंगे, तो उनका नायब बन जाता है, घर वालों की कफालत करता है। औ फत्तर साइमन, या किसी रोजेदार के रोजे को खुलवाता है, इफ्तारी करवाता है। कान लहू मिस्लु उजूरिहिम,
اللہ کے नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना अजर उस नेकी करने वाले को मिलता है, यानी रोजा रखने वाले को जितना अजर है, इफ्तारी करवाने वाले को भी उसके बराबर अजर मिलेगा। जितना हज करने वाले को अल्लाह अजर देंगे, उतना हज की तैयारी करवाने वाले, हज पे भेजने वाले, या फिर उसके घर वालों के काम आने वाले, उसको अल्लाह उसके बराबर हज का अजर अता फरमाएंगे। इसी तरह जिसने मैदान कारजार में किसी को उतारा है, उसकी तैयारी करवाई है, असलहा फराहम किया है, या सपोर्ट किया है, या फिर उसके घर में उसकी देखभाल उनके घर वालों की है, फरमाया जितना मुजाहिद को लड़ने का अल्लाह सवाब देंगे, तो ये उनकी देखभाल करने वाले को भी अल्लाह मुजाहिद के बराबर सवाब अता फरमाएंगे। आगे फरमाया मिन गैरी अन यंतकिस मिन उजूरिहिम शै, नेकी करने वालों के अजर में भी अल्लाह जर्रा बराबर कमी नहीं आने देंगे, उनको पूरा अजर मिलेगा, इनके बराबर इनको भी अल्लाह अता फरमा देंगे। अल्लाह हमें ये हुस्न सुलूक करने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब गिरामी, हज पर नहीं जा सके तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान सुन लीजिए। एक शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहा, बल्कि खातून ने शिकवा किया, परेशान हुई, कहने लगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं हज में शामिल नहीं हो पाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फइज़ा जाअ रमज़ान, रमजान आ लेने दो, फअतमिरी, रमजान में उम्रा कर लेना, फइन्न उम्रतन फीही तअदिलु हज्जा, रमजानुल मुबारक में आपका उम्रा अल्लाह हज के बराबर कर देंगे। दूसरी रिवायत को साथ मिलाए, रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उम्रतुन फी रमजान तअदिलु हज्जतन औ हज्जतन मई, फरमाया रमजान में उम्रा हज के बराबर है, या फिर यूं है जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के साथ मिलकर आपने हज किया है। कहते हैं ना कि मैं फलां के साथ हज में था, मैं फलां के साथ हज में था। रमजान में उम्रा करना ऐसे है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने हज किया है। और वहां पहुंचकर भी ना, मैं तो यही बात किया करता हूं, जो भी जा रहे हों या रहनुमाई लेना चाहते हूं, तो मैं मसाइल बताने के साथ फिर ये बताता हूं कि कोशिश करें कि जो मसनून ज़ियारतें हैं ना, मसनून और ज्यादा फायदामंद आमाल, उनको ज्यादा अपनाने की कोशिश करें। वैसे तो देखें ना, जहां अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा में 40 साल पहले के और 13 बाद वाले 53 बरस गुजारे हैं। देखे ना हाजी साहब, एक एक लम्हा वो तारीखी है, एक एक जगह वो तारीखी है, हिस्टोरिकल प्लेस है, उसके साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत है, जुड़ी हुई है। तो वैसे तो सारा मक्का मुकर्रमा और सारी वो वादी, वो पाकीज़ा, वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ी हुई है, एक एक जगह की हिस्ट्री है। फिर अगर सारी ज़ियारतें शुरू कर दें तो फिर तो हरम शरीफ रह जाएगा। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना पाक में 10 साल गुजारे हैं, मदीना की खूबसूरत रियासत कायम फरमाई है, वहां भी एक लंबी तारीख और दास्तान है। लेकिन उसमें एक ज़ियारत के ऊपर मैं बड़ा जोर देता हूं और अपने भाइयों से दरखास्त करता हूं, चले मेरा भी उसमें हिस्सा बन जाए नेकी का। वो ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन ततहहर फी बैती, जो अपने घर में वुजू करे, अपने होटल में वुजू करे, मदीना मुनव्वरा में मौजूद है वो बंदा, उम्रे हज पे गया हुआ है, सुम्मा अता मस्जिद क़ुबा, फिर मस्जिद क़ुबा आता है, मस्जिद क़ुबा। मेरे मौला हम सबको हाजिरी नसीब फरमा। नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए अल्लाह ने मक्के वालों पे करम किया है ना, तो मदीने वालों को भी पीछे नहीं छोड़ा है, उन पे भी एक खास करम फरमा दिया है। वो रोजाना उम्रे की सआदत हासिल कर सकते हैं, जितने चक्कर लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फसल्ला फीही सलातन, वहां नमाज अदा करता है। एक रिवायत में है 2 रकते अदा करता है, और यहां पर है नमाज अदा करता है। इसका मतलब यह हुआ, अगर वो फर्ज नमाज के वक्त आता है तो वो नमाज पढ़ी गई तो भी यही अजर है, अगर नमाज का वक्त नहीं है तो वो वैसे आता है और 2 नफल पढ़ के चला जाता है तो भी यही अजर है।
इब्न माजा की रिवायत, फरमाया कान लहू कअज्रि उम्रा, अल्लाह पूरे उम्रे का सवाब अता फरमा देते हैं। उम्रे हज में गया, रमजानुल मुबारक में अगर करे तो इसकी फजीलत और बढ़ जाएगी। तो मदीना तैयबा में अल्लाह हमें ले जाए तो वहां पे कसरत के साथ जो आपने काम करना है ना, हरम शरीफ में रहने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा, जाहिर है कुछ खर्च तो इजाफी होगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाया करते थे, हर हफ्ते जाया करते थे, माशियन व राकिबन औ राकिबन, कभी सवार होकर जाते और कभी पैदल जाया करते थे। अब तो बड़ा बेहतरीन ट्रैक सीधा बना हुआ है, सिर्फ 3 किलोमीटर का फासला है। बंदा दोनों सुन्नतों पे अमल करे कि मस्जिद नबी से निकले, कभी सवारी पर जाए और कभी वो पैदल चला जाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों सुन्नतों पे वो अमल पैरा हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते ये अमल किया करते थे। तो हम तो जाते ही 1-2 हफ्तों के लिए हैं, तो हमें तो कसरत से ये काम करना है। अच्छा, मुझे बात याद आ गई, बाज दफा ना वहां लोगों का ज़ौक देखा है, वो वहां कर रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे थे, मेरियां 8 रकता हो गई, 4 उम्रे हो गए ना, 4 उम्रे। उनका ज़ौक देखे, मोहब्बत देखे, लेकिन मसला अपनी जगह पर। मैं मसला बताना चाहता हूं कि 2 रखते 1 उम्रा, 2 रखते 1 उम्रा, आप 100 रखते 50 उम्रे, ऐसा नहीं करेंगे। फिर तो उस जगह की वैल्यू और उसकी कदर मंजिलत वो नहीं रहेगी। एक वक्त में जितनी नमाजें भी अदा की जाएंगी वो एक ही उम्रे का अजर होगा, एक ही उम्रे का वो सवाब और शरफ मिलेगा। हाँ, वैसे नेकियां मिलेंगी जितनी रखते पढ़ते जाएंगे, लेकिन हर 2 रखतों का नहीं है, बल्कि एक चक्कर या एक सफर का अल्लाह ने ये अजर रखा है, वो फर्ज नमाज हो या नफल नमाज हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को कसरत से अपनाना चाहिए। अल्लाह हमें बार बार ये सआदत हमारे नसीबे में फरमा दे। अहबाब गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम ने कई ऐसे अमाल और भी बयान किए हैं जिनकी वजह से मुझे और आपको यहां अपनी आम जिंदगी गुजारते हुए भी हज और उम्रे की सआदत हासिल हो सकती है, वो मुकाम और मर्तबा मिल सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम फरमाते हैं, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्लल गदात फी जमाअ, जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ी, फजर की नमाज जमात से पढ़ी, सुम्मा क़अद यज़कुरुल्लाह, बैठा अल्लाह का जिक्र करने लग गया, हत्ता तत्लुअ अश-शम्स, सूरज निकल आया। मैं पहले भी बताया करता हूं, अमूमन इसका जो टाइम होता है वो 1 घंटे से 1.25 घंटे का दौरानिया होता है, मौसम के मुताबिक बदलता रहता है, आजकल तो बिल्कुल शार्ट है। फरमाया सुम्मा क़अद यज़कुरुल्लाह, जमात से फारिग हुए, 4:15 हो गए, अब उसने कोई 1.25 घंटा गुजारना है, अल्लाह का जिक्र करना है, बावजूद बैठा है, जिक्र हो रहा है। सुम्मा सल्ला रकअतैन, कितनी रकते फिर पढ़नी है, सूरज निकल आया, कितनी रकते पढ़नी है, 2 रकते। काना लहू कअज्रि हज्जतिन व उम्रतिन ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मा, अल्लाह उसको मुकम्मल 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 हज और उम्रे का सवाब अता फरमा देते हैं। मैं अर्ज किया करता हूं कि किसी ना किसी दिन तो ये हज और उम्रा हमें यहां कर लेना चाहिए ना। अगर हमारी वाकई हज और उम्रे की वो नीयत पुख्ता है और हमारे दिल में वो ख्वाहिश मौजूद है कि काश अल्लाह ले जाए, अल्लाह ले जाए, तो अल्लाह इंशाल्लाह ले भी जाएंगे, लेकिन तब तक कम अज कम इस पर तो हमें गुजारा करना चाहिए, ये शरफ तो पा ही लेना चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह कभी कभी तो कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको ये सआदत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम ने ये अमाल इसलिए बयान किए हैं ताकि मेरी उम्मत को जो अल्लाह ताला ने निस्बतन कम उम्र दी है ना, निस्बतन पहली अक़वाम की निस्बत कम उम्र और कम वक्त मिला है, तो इनको ऐसे अमाल दे दिए हैं
ऐसे मौके दे दिए हैं, ऐसी घड़ियां अता कर दी हैं, ऐसी सआदतें इनमें अता कर दी हैं कि जिनको हम अपना कर, जिन मौके को हम अपने मुकद्दर में बनाकर और मंसूब करके उनसे फायदा उठा के उन लोगों की जिनकी ज्यादा उम्र होती थी और सैकड़ों बरस होती थी और हजारों बरस, उनसे सबकत ले जा सकते हैं, नहीं तो उनके बराबर भी हिस्सा ले सकते हैं। थोड़े वक्त में ज्यादा अल्लाह ताला ने हमारे ये मुकद्दर में ये चीजें लिखी हैं, जिनमें से एक बड़ी मिसाल वो लैलतुल कद्र है। क्या फरमाया उसके बारे में कि लैलतुल कद्र का क़याम, उसको पा लेना 1000 महीने से ज्यादा अफजल है। तो ये 83 साल 4 महीनों की इबादत बनती है। इतनी तो शायद एक शख्स की अमूमन उम्र नहीं होती है, बिल उमूम इतनी उम्र नहीं होती है, अगर हो भी तो मैक्सिमम इतनी होती है। अल्लाह हम सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए। तो ये जो शरीयत इस्लामिया ने मेरे और आपके लिए सआदतें बयान की हैं, ये सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं है भाइयों, ये अपनाने के लिए भी है। देखिए मैंने अभी अर्ज किया कि जुमातुल मुबारक है, आम नमाज के हवाले से फरमाया गया घर से बावजू हो गया है और नमाज पढ़ने की गरज से आया है, तो भाई इसको एहराम पहनकर हज करने का सवाब अल्लाह देते। तो क्या ख्याल है अगर जुमातुल मुबारक के दिन हम ये एहतमाम कर लें तो अल्लाह ताला कितना ज्यादा अजर अता फरमाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मुहतरम बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों और मेरे बेटों, हमें जुमे के दिन कम से कम वक्त पर नहीं बल्कि वक्त से पहले आने की कोशिश करनी चाहिए, वक्त से पहले आने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अमूमन तो इस तरफ से आता हूं, आज मैं इस तरफ से आ रहा था तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि बिल्कुल चंद लम्हात बाकी हैं जुमा शुरू होने में तमाम मसाजिद में, तो अभी तक बाजार में गहमा गहमी है, इतनी रौनक है। ये रौनक नहीं होनी चाहिए। जाहिर है भाइयों ये मेरे और आपके साथ ही है ना, हमारे में से ही लोग है ना जो यहां, फिर ठीक है जी हम मान लेते हैं कि आधे लोग दूसरे पिंडा चो आ गए, मान लेते हैं एक लम्हे के लिए, तो भाई हमने ये कारोबार इसको क्लोज नहीं किया तो वो लोग आए हैं ना। ये पहला जो काम है वो मेरा और आपका ही बनता है। तो मैं आपसे अदबन अदबन फिर अदबन इकरामन और एहतरामन दरख्वास्त करता हूं, सरासर इसमें हमारा ही फायदा है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब इमाम निकल आता है ना खुतबे और नसीहत के लिए, तो फरिश्ते रजिस्टर बंद कर देते हैं, जो हाजिरी पहले लग चुकी होती है वो लग जाती है, यस्तमीऊन जिक्र, फिर वो भी बैठकर जिक्र सुनने में मसरूफ हो जाते हैं, वो फिर हाजिरी नहीं लगाते हैं, कौन आया है कौन नहीं आया है, उनको सआदत मिल जाती है जो पहले आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप, मुझे उम्मीद है कि चंद मिनट पहले तो इंशाल्लाह आने की जरूर कोशिश फरमाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सब से ये सआदतें कबूल फरमाए। ये जो अमाल और सआदतें मेरे लिए और आपके लिए बयान हुई हैं, अल्लाह ताला इनको अपना कर ये सआदत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको बैतुल्लाह शरीफ और मदीना तैयबा की बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।